Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography, chapter number 4, that is Distribution of Oceans and Continents. In this series, we've already completed the first part of this chapter. So, if you're new to this, I would request you to please watch the previous videos and then come for this one. We have already completed the first 3 chapters of this book as well, so you can go through every chapter. This is the second video for this chapter. In the last class, we talked about the Alfred Wegener's continental drift theory. In that theory, we talked about how there was a single landmass which was known as Pangaea and the mega ocean which was known as Panthalassa, and how the Pangaea broke down into divided into 2 parts. Upper part was known as Laurasia and the southern part was known as Gondwana land. After that, we talked how these continents like Africa, South America fit in with each other like a jigsaw puzzle. So there were some evidences which proved that why and how this continental drift theory was proposed and was accepted by many. So there were certain evidences, certain proofs which were given to justify the theory. First one was the jigsaw fit, that is the way the puzzle fits in every piece. The pieces of puzzle fit together. Similarly, the continents also fit together with some alterations. Second thing we found was the that was your rocks of same ages across the ocean, that we saw that there was same rocks, that the ages of rocks on the sides of oceans, that is, if this is a continent, this is the coastline of the continent, so the rocks found here and the rocks found here were same. We also saw that there were marine evidences which were not present on the sides of South America and Western Africa because of the absence of oceans in the past. Then we saw the glacial deposits, that is the tillet, which indicated how some part of glacial deposits were same in India, which is in northern hemisphere, and other countries, which are other parts of continents which are in southern hemisphere, which includes your South Africa, South America, Australia, and so this parts of South Africa. So this was about the tillet. Next thing we studied was placer deposits. What are placer deposits? These are the gold deposits which are found in the on the banks. That is, we found that this is your Africa. This is your Africa. There is this place known as Ghana. So we found there is a gold. There is deposits of gold, but there is no source of gold, which means the gold is present, but the rock which is required to produce gold is absent. And the rock which produces gold is present on South America, present in South America, which is like this. So the rock is present here. So when we assume that this were joined together, that is why the gold came this side. Next was your fossils. We found certain plants and animals which were not indigenous to a local place, but we found them there, and thus we concluded that there could be a single landmass in the past which broke down. Now we got to know that obviously there was a single landmass in the past which later divided. The problem here comes is the force which is given, which means the idea given by Wegener about how is this divided, क्या हो गया ऐसा कि एकदम से ये डिवीजन कैसे हो गया. मतलब कि जो वेगनर ने बोला कि देयर इज समथिंग पर्टिकुलर जिसकी वजह से ये डिवीजन हुआ, कि गोंडवाना लैंड लॉरेशिया ब्रेक हुआ, कुछ रीज़न रहा होगा कि आज भी, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, किस तरह से आज भी जो पूरा वर्ल्ड है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. सो व्हाट इज़ दिस वन थिंग जो इन सारे फैक्टर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है. सो वेगनर सजेस्टेड कि जो ये मूवमेंट, ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये एक तो पोल फ्लीइंग फोर्स, आपका पोल फ्लीइंग फोर्स जिसको हम कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं, और आपका टाइडल फोर्स. पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स दो ऐसे फोर्स हैं जिनकी वजह से ये आपकी मूवमेंट हो रही है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले तो समझते हैं पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स क्या होता है, एंड देन वी वुड अगेन स्टडी व्हाट he has written to justify it. Okay, so let us now understand this polar fleeing force. पोल फ्लीइंग का मतलब क्या हो गया. आपने कभी सबने बचपन में हमने लट्टू से खेला है, टॉप बोलते हैं जिसको, लट्टू से आपने खेला होगा.
तो लट्टू के कुछ इस तरह का दिखता है लट्टू, जिस तरह का मैंने बनाया है। नीचे से एक पॉइंट होती है आपका इस तरह से, और ऊपर ये आपको हाथ में हैंडल जो पकड़ने के लिए होता है, जिसको आप घुमाते हो तो जिससे आपका लट्टू रोटेट करता है। अभी पोलर फ्लेम, लट्टू क्यों घूम रहा है? आप अगर लट्टू के यहाँ पे हाथ रख देते तो लट्टू रुक जाता था, बट वो क्यों घूम रहा था? क्योंकि आप यहाँ से प्रेशर डाल रहे थे, यहाँ से पॉइंटेड था और इस वजह से वो मूव कर रहा था। सिमिलर इज द केस विद द अर्थ। अर्थ के केस में आपने अगर बचपन में लट्टू देखा भी होगा तो उसकी जो शेप होती थी वो किस तरह से होती थी? वो टॉप से फ्लैट होता था और साइड से बल्जिंग होता था, यानी कि टॉप उसका फ्लैट होता था और साइड इसकी बल्जिंग। ठीक है, ये चीज हमने टॉप से समझी। दूसरी चीज आप समझते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। व्हाट इट डज? रोटेट। हम सबको पता है दिन रात किस वजह से हो रहा है? अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सन है, इधर सन है, तो इधर क्या होगा? इधर डे होगा, इधर नाइट होगा, रोटेशन हो जाएगा, इधर नाइट हो जाएगा, इधर डे हो जाएगा। तो सन, ये जो रोटेशन होती है अर्थ में होती है, इस रोटेशन की वजह से, ये रोटेशन काफ़ी स्पीड से होती है, इस रोटेशन की वजह से क्या हुआ ना, अर्थ में ये जो फास्ट, पहले तो ये रोटेशन कौन से डायरेक्शन से होती है? आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर ये वेस्ट डायरेक्शन है तो मैं इस तरह से घूम के ईस्ट डायरेक्शन, फिर ऐसे जाऊंगी, फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपकी रोटेशन होती है। अब नाउ दिस अर्थ जो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, काफ़ी स्पीड पे रोटेट करती है। इसको हम कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पोलर फ्लीइंग फोर्स को ही हम कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो हमारी अर्थ है ये मूव करती है, हिल रही है। कोई चीज़ हिलती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर यहाँ पे एक लैंडमास होगा तो वो हिलने की वजह से कंटिन्यूसली उसको क्या मिलेगा? धक्का लगेगा, पुश मिलेगा और वो हिल जाएगा। भाई वो कह रहा है कि कोई चीज़ है, मैं इसको इस तरह से घुमा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखो ये जो कैमलिन लिखा है, यहाँ पर देखो ये कैमलिन लिखा है, मैं इसे घुमा रही हूँ तो क्या हो रहा है? इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। सिमिलरली जिस तरह से अर्थ घूमता है उसकी वजह से ये जो लैंडमास होता है ये भी मूव करने लगता है। इसने ये चीज़ बोली पोलर फ्लीइंग फोर्स के बारे में। कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक और मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहती हूँ। यहाँ कोरियोलिस फोर्स तो बता दिया मैंने, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ऊपर से टॉप। इसी फोर्स की वजह से क्या हो गया है? जो अर्थ का जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जो साइड है, ये बल्ज हो गई है, यानी कि बाहर को आ गई है। कोई चीज़ है जिसको आपने अगर कोई चीज़ ऐसे करके घुमाई भी होगी तो क्या होता है? जो बाहर वाली चीज़ है वो बाहर को निकल गई है, ऊपर से दब गई है बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। नाउ अब होमवर्क है आपके लिए, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये कोरियोलिस फोर्स पोल पे, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा कि यहाँ पे ज़्यादा फास्ट। यानी कि जब आप लट्टू घुमाते थे तो वो लट्टू के टॉप ज़्यादा ज़ोर से घूमता था या साइड्स ज़्यादा ज़ोर से घूमती थी? दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, फाइंड आउट, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन और वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। ओके, now this is your pole flowing force. Next is your tidal force. Now let us understand this tidal force. आपने टाइडल वेव्स के बारे में सुना होगा, टाइडल एनर्जी के बारे में सुना होगा। इसके बारे में हम इन डिटेल जब हम टाइड्स पढ़ेंगे तब हम बहुत सारा चीज़ें पढ़ेंगे, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, बहुत कुछ पढ़ेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे आया है तो मैं आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, जब सन में भी ग्रेविटेशन पुल है, अर्थ के पास भी ग्रेविटेशन पुल, मून के पास भी ये सन बनाया है, मैंने मून बनाया, ठीक है। सन के पास भी ग्रेविटेशन है, मून के पास भी ग्रेविटेशन है। ये है आपकी अर्थ। अर्थ में क्या है? पानी, ये वाटर। तो क्या होता है, सन और मून अपनी तरफ अर्थ को खींचने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है, लैंड मास तो नहीं खिसकेगा, और ये जो वाटर है ये खिसक जाता है और थोड़ा सा जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है इस तरह, ठीक है। अब क्या होगा? अगर ये पानी यहाँ की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और ये चीज़ नहीं होगी, पानी यहाँ की तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ का तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मुझे कोई सिर्फ आगे से खींचेगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊँगी। तो मैं इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करूँगी? मैं पीछे से एक फोर्स लगाऊंगी। जैसे आगे से फोर्स लग रहा है वैसे ही पीछे से फोर्स लगाऊंगी टू बैलेंस। तो ये जो बैलेंस होता है वो कौन क्रिएट करता है? अर्थ क्रिएट करता है। किस तरह से?
ये जो अर्थ है इसको आगे से तो सन खींचता है, ये अपना खुद पीछे एक फोर्स जनरेट करता है अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सेम इज विद मून, मून के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये टाइडल फोर्स से बताना चाह रहे थे कि ये जो पानी की मूवमेंट, पहले आप यहाँ आया, फिर क्या होगा, अर्थ रोटेट हो जाएगी, तो जब पोजीशन यहाँ पे होगी तब मून, सन होगा ही नहीं, वापस पानी पीछे चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सन इसको खींचेगा, ये पीछे खींचेगा। तो कंटिन्यूसली ये जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सन और मून दोनों ही ग्रेविटेशन की वजह से पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको हम टाइडल फोर्स कहते हैं। सन और मून दोनों का टाइडल फोर्स होता है। मून हमारे पास में है, क्लोज है, इसलिए उसका टाइडल फोर्स सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इस मूवमेंट के कारण जो हमारा ये पानी है ये मूव करता है, कभी सन की तरफ, कभी मून की तरफ, कभी सन की तरफ, कभी मून की तरफ, कभी कुछ नहीं है तो खाली हो गया। मान लो इधर से सन आ रहा है, जब मैं इधर थी तब सन खींच रहा था, अब मैं इधर हो गई तो सन खींच ही नहीं पाएगा, वो यहाँ से खींचेगा, यहाँ का पानी वापस चला गया, फिर मैं यहाँ आऊँगी तो वो पीछे से। तो इस तरह से क्या होगा, जो जिस पोजिशन पे आप हो तो वाटर की मूवमेंट चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से पानी मूवमेंट हुआ और इस वजह से लैंड और जो सारा चीज़ें थी कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने लग गए। तो ये दोनों फोर्सेस was given by एल्फ्रेड वेगनर कि ये दोनों रीजंस रहे होंगे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट अपार्ट होने के। रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, हमने देखा कि जो पोलर फ्लिंग है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ से है। हाँ, हमने देखा, हमको ये भी पता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो इक्वेटर पे बल्ज करता है, बाहर निकलता है। ये बल्ज क्यों है, रोटेशन की वजह से है। इससे ज़्यादा ही बता दिया मैंने आपको, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब किया भी नहीं है। फिर जो सेकंड फोर्स है वो वेगनर ने बोला है टाइडल फोर्स है, ये वाला। ये अट्रैक्शन मून और सन की अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ओशन वाटर में टाइड्स, ओशन के वाटर में ये टाइड्स ऊपर नीचे यानी कि टाइड्स ऊपर पानी का, जैसे ये आपकी कोस्ट है, ठीक है, मान लो ये कोस्ट है, तो क्या होगा, पानी यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा। इस वजह से ओशन वाटर में टाइड्स डेवलप होती हैं, जो कि वेगनर बिलीव कि ये जो फोर्सेज हैं ये कुछ समय एक बारी के लिए इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, पर लेकिन लॉन्गर टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली जब कोरोलिस फोर्स यानी कि पोल फ्लिंग फोर्स लगता रहेगा, कंटिन्यूसली जब टाइडल फोर्स लगता रहेगा, तो ये इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि मिलियन ईयर्स में ये चेंजेस करने के केपेबल। बट हमने ये सारी मेहनत जो करी, आपको फोर्सेज समझ में आने चाहिए, बट ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये साइंटिस्ट ने मना कर दिया कि ये कुछ भी सच नहीं है, इनएडिक्वेट है। ये फोर्सेस की वजह से अर्थ, ये फोर्सेस कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि ये कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग के लिए कंट्रीब्यूट करें। फिर पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज यानी कुछ और लोगों ने अपनी अपनी स्टडीज दी फॉर दिस कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी के अलावा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अलावा, व्हाट आर दी अदर पॉसिबल चेंजेस। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसका जो हमने, आप देखो, हमने जितने भी मेजर एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे, जो हमने कल एविडेंस के बारे में बात करी थी, हमने कहाँ से कलेक्ट किए थे, साउथ अमेरिका से और वेस्टर्न अफ्रीका से। हमने कोस्टल चीज़ों की बात करी, हमने गोल्ड की बात करी, हमने फॉसिल डिपॉजिट्स की बात करी। तो अब ये जो हमने एविडेंस क्रिएट किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ये हर जगह के लिए ट्रू नहीं है, यानी कि ये बहुत सारे नहीं मिले हैं हमको, फर्स्ट। सेकेंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा यानी कि फ्लोरा, फोना, फॉसिल की डिपॉजिट, टिलर, इन जैसी चीज़ों पे डिपेंडेंट था। ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ डिस्कवरीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई हैं, जिन्होंने हमारी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल यानी कि अर्थ की फॉर्मेशन की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, लिटरेचर है, उसमें काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। पर्टिकुलरली अभी तक हम सिर्फ लैंड की स्टडी कर रहे थे, एल्फ्रेड वेगनर ने भी ज़मीन की स्टडी करी, उसने ओशंस के बारे में कुछ स्टडी नहीं करी। अब हमको ओशन फ्लोर के बारे में पता चलना शुरू हुआ। ओशन फ्लोर क्या होता है, आप तो ज़मीन पर खड़े हो, ओशन में जाओगे तो कहाँ जाओगे, अंदर, ऐसा तो नहीं गड्ढा डीप एक जगह पे अटलांटिक ओशन से घुसे और पैसिफिक ओशन में निकले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओशन का भी एक फ्लोर होता है। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस ओशन फ्लोर की जब हमने स्टडी करना शुरू करा तो हमको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिली। फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने देखा। फिर हम बात करेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ये अर्थर होम्स ने 1930, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, अर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी है। अब इनकी थ्योरी अपने आप में अलग नहीं है, ये बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जो एल्फ्रेड वेगनर ने आइडिया दिया था पोल फ्लिंग फोर्स का और टाइडल फोर्स का, वो तो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया।
तो इन्होंने एक और आइडिया दिया है कि ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है इसकी वजह से शायद कुछ हुआ होगा, तो हुआ होगा इन दी ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज करेंट्स आर जनरेट, और ये करंट का होते हैं मेंटल पोर्शन में होते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, देन वी वुड बी रीडिंग व्हाट इज रिटन इन दी ओके। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले तो कन्वेक्शनल करंट हमें थ्योरी मिलेगी कहाँ, ये अपर मैंटल वाले। अपर मैंटल यानी कि एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर यानी कि लिक्विड स्टेट। तो हम जो भी समझेंगे वो इस स्टेट में समझेंगे। उससे पहले ये लैंड है, पहाड़, प्लेन एरिया, प्लेट्यूज, माउंटेन, ये सब हमने देख लिया। इसके नीचे आपका क्रस्ट है, ये क्रस्ट में भी ऐसे करके लेयर्स होती हैं जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। इनके बारे में हम और आगे देखेंगे। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है, मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप करके देख सकते हो। पहला तो अगर आप लोगों के घर में माइक्रोवेव है तो उसमें अगर आप एक कांच के ग्लास में पानी रखोगे तो क्या होगा ना, अगर आपने 30 सेकंड्स के लिए पानी रखा होगा तो जब आप पानी पियोगे तो जो ऊपर का पानी होगा वो तो गर्म होगा, और जो नीचे का पानी होगा वो ठंडा होगा। ऐसा कैसे हो रहा है आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है नीचे का पानी ठंडा होता है, बल्कि वो तो नीचे अगर बेस नीचे गिलास ऐसे रखा है तो नीचे का पानी गर्म होना चाहिए, ऊपर का ठंडा होना चाहिए, बट नहीं, उल्टा हो। सिमिलरली अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप एक नॉर्मल बर्तन में भी पानी रख सकते हो, जिसमें जो ऊपर का टेम्परेचर होगा वो तो गर्म होगा पानी, बट नीचे क्या होगा, पानी ठंडा होगा। ये क्यों होता है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप ये एक प्लेट है और आपकी ये दूसरी। कन्वेक्शनल करंट, जाहिर सी बात है हीट कहाँ से आ रही है, नीचे जितना होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी। जैसे हम डेप्थ में जाते हैं हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारी हीट इंक्रीज होती है, तो जाहिर सी बात है जो हीट इधर होगी, अगर मान लेते हैं इधर 70% हीट है तो इधर आपकी 30% हीट, ठीक है। अभी के लिए फिर क्या होगा, एक कन्वेक्शनल करंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। कन्वेक्शनल करंट सिंपल सा होता है कि जो नीचे गर्म हो गया, यहाँ पे 70% हीट थी तो ये एरिया गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद ये ऊपर मूव करेगा। क्यों गर्म हो जाने के बाद ऊपर क्यों मूव करता है, गर्म चीज़ हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर लिफ्ट होती है, ऊपर जाती है। लाइट चीज़ हो गई ना, आप किसी चीज़ में कोई भारी चीज़ और हल्की चीज़, तो हल्की चीज़ ऊपर उठेगी, भारी चीज़ नीचे सेटल हो जाएगी। सिमिलरली गर्म हीट की वजह से, तो ये हल्की हीट की वजह से लाइट हो गया तो ये ऊपर मूव करता है। यहाँ पे जो लिक्विड है वो ठंडा है, वो नीचे आएगा, फिर वो गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वो आएगा वो बहुत गर्म हो जाएगा, ऊपर क्या है वो ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से ये जो साइकिल है इसको हम कन्वेक्शनल करंट क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। जो ऊपर का कोल्डर पोर्शन है, कोल्ड होता है, नीचे हॉट होता है। हॉट होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है, इसीलिए वो ऊपर जाता है। कोल्ड जो होता है वो हेवी होता है, इसीलिए वो सिंक करता है, ये फ्लोट करेगा ऊपर। तो ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है। अब आप देखो जैसे जैसे ये मूवमेंट कंटिन्यूसली होती रहेगी तो क्या होगा, ये प्लेट दिख रही है आपको, इस प्लेट के साथ क्या होगा, जब ये पानी यहाँ मूव करेगा तो ये प्लेट भी यहाँ मूव करेगी। पानी चला गया, प्लेट मूव गई, फिर दोबारा आया, फिर ये इस प्लेट को खिसका देगा। तो इस वजह से जो हमारी प्लेट्स हैं इसमें मूवमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करंट जो कि मेंटल पोर्शन में चल रहा है। एक बार और थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। कन्वेक्शनल करंट में क्या होता है, जो नीचे का टेम्परेचर होता है हीट मिलने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है, गर्म चीज़ हल्की होती है, हल्की होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो हाई प्रेशर लो प्रेशर भी आपने पढ़ा होगा, लो प्रेशर या लो कम प्रेशर, हल्की चीज़, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाएगी, गर्म चीज़, ठंडी चीज़ नीचे आएगी, फिर ठंडी चीज़ जो नीचे आ गई वो गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी, गर्म चीज़ नीचे आएगी। तो इस मूवमेंट की वजह से अब यहाँ पे था कि लिक्विड बार बार आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है मुझे यहाँ ले जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर मुझे यहाँ खिसका रहा है, फिर आ रहा है मुझे यहाँ। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरी प्लेट है ऊपर उसकी बॉन्ड वीक हो जाती है और ये मूव करने लगती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दी बुक। तो कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी दी थी जो मेंटल पोर्शन में होती है। ये जो करंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं। थर्मल डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। ये होता है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है,
यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम है, और ये थर्मल डिफरेंस की वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर, ये मूव करता रहता है। Holmes argued that there exists a system of such currents in the entire mantle ocean. और अर्थर होम्स ने क्या बोला कि ये जो सिस्टम है ये पूरे के पूरे अर्थ में, पूरे के पूरे अपर मैंटल पोर्शन में यही सिस्टम, यही पैटर्न फॉलो होता है। ये एक तरीके से अटेम्प्ट था, जो फोर्स का इशू पड़ा था ना हमको, एल्फ्रेड वेगनर को पोलर फ्लीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उस फोर्स को इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए अपना ये ओपिनियन दिया है, इशू ऑफ फोर्स को बताने के लिए। कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने, क्योंकि जिन्होंने कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि वो जो फोर्सेस वेगनर ने बताए थे वो उससे अग्री नहीं करते थे। तो जो अर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी, वो इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी कि अब हमने ओशन फ्लोर की स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज फुल ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं, जब हमने ओशन की बहुत अच्छे से स्टडी करी तो हमको ऐसा पता चला कि जब अगर हम ओशन का सारा पानी हटा देंगे तो हमको सिर्फ प्लेन एरिया नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ प्लेन एरिया नहीं मिलेगा बट रिलीफ फीचर्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिलीफ। सो ये हमने बात करी कि जो ये ओशन का फ्लोर है इसमें सिर्फ प्लेन एरिया नहीं है बट इसमें बहुत सारा रिलीफ फीचर्स भी हैं। रिलीफ फीचर्स का मतलब जैसे आपके नॉर्मल लैंड पर पहाड़ होते हैं, प्लेन होता है, प्लेट्यू होता है, इस तरह से ओशंस के अंदर भी बहुत कुछ है। तो जब हमने ये स्टडी करी फुल ऑफ रिलीफ, एक्सपेडिशंस टू मैप ऑफ द ओशन फ्लोर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जब हमने देखा तो हमको ओशन रिलीफ के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस मिला, और हमको तब पता चला सबमर्ज्ड रिजेस के बारे में, सबमर्ज्ड माउंटेन रिजेस। हमने देखा था ना मिड ओशनिक रेंजेस, हमने जो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था मिड ओशनिक रेंजेस की, किस तरह से ओशंस के बीच में एक पहाड़ की पूरी लाइन है, मिड ओशनिक रिजेस हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं इनसाइड द ओशन। तो ये जो मिड ओशनिक रेंजेस हैं, पहाड़ के अंदर माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस मिलेंगी आपको, लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे ही जनरली हमको ये ट्रेंचेस वगैरह मिल जाती हैं। जो मिड ओशनिक रिजेस हैं वर फाउंड मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ये जो रिजेस हैं इनसे हमको बहुत कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शंस का जो बहुत रेगुलरली देखने को मिला है, यानी कि जो पहाड़ हैं ये वॉल्केनिक के नेचर होते हैं। हमने उस दिन भी बात करी थी कि ये पहाड़ क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से वॉल्केनो जो पहाड़ बने वो क्यों बने, क्योंकि जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, दूर जाने की वजह से जो अंदर का लिक्विड मटीरियल था वो बाहर आ रहा है और वो रेंजेस फॉर्म कर रहे हैं, और यही रेंजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम ओशनिक क्रस्ट जब हमने रिवील किया तो हमको ये पता चला कि दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। हमको कैसे पता चला कि जो हमने रॉक की जो ओशन क्रस्ट की डेटिंग करी तब हमको पता चला कि ये जो क्रस्ट है ये तो बहुत बाद में फॉर्म हुआ है, बल्कि जो वो जो कॉन्टिनेंट्स का क्रस्ट है वो बहुत पहले से फॉर्म हुआ था। रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द crest of the ocean ridges having equidistant location from crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their age। तो जो क्रेस्ट वाला है यानी कि जो वॉल्केनो का जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है उसके इस साइड और उसके इस साइड जो हमको रॉक्स मिली हैं, जो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हैं, जो मेटल्स वगैरह मिले हैं, जो मिनरल्स मिले हैं, वो काफ़ी कुछ सेम। बहुत सारी चीज़ें जो आपके सर के ऊपर से लिखी होंगी, लेट अस अंडरस्टैंड इट पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले तो इन्होंने बात करी कि ओशन में होते हैं पहाड़। ये रहा आपका पहाड़, इसी के पहाड़ यहाँ पे सब जगह पानी होता, ये भी पानी होता, ये भी पानी होता, तो ये पहाड़ आपका क्या हो जाता, इसको हम आइलैंड बोल देते। क्या बोल देते? आइलैंड बोल देते। ये पहाड़ आपका क्या बन जाता? आइलैंड बन जाता। नाउ इस पहाड़ के अलावा ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, दिस डेप्थ, ये क्या होती है? ये आपकी ट्रेंच होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच। आपने सुना होगा मरियाना ट्रेंच वगैरह के बारे में, जो हमारी डीप ट्रेंचेस हैं। उसी तरीके से ये जो ये है, ये क्या है आपकी? ये मरियाना ट्रेंच है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये स्लोप होता है, ये शेल्फ होता है, ये एबिसल प्लेन होता है, ये आपके ग्लेयर्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आप वो मत वरी करो। और ये मैं आपको बताने के लिए कि किस तरह से ओशन एक प्लेन नहीं है। आप ज़मीन के अंदर, आप ओशन के अंदर जाओगे, पानी के अंदर जाओगे, तो आपको सब ऐसा सिंपल चीज़ें सामने रोड नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी इसमें अप्स एंड डाउन इनसाइड द ओशन भी होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इन्होंने, मिड ओशनिक रिजेस की बात करी है। इन्होंने बोला कि ये अगर हमारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये जो पहाड़ है जिनको हम मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिजेस। ये कैसे बन रहे हैं?
एक प्लेट थी ये और एक प्लेट थी ये प्लेट यहाँ जाती है, ये प्लेट यहाँ जाती है, तो अंदर से जो मैंटल पोर्शन में जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है और वो इस तरीके के पहाड़ फॉर्म करता है। अब क्या हुआ कि जब हमने स्टडी करी तो हमको पता चला अब ये पहाड़ तो अभी बने हैं, वोल्केनो की वजह से बने हैं। तो पहले तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट साथ में चिपके हुए थे, यानी कि कुछ सिस्टम हमारा इस तरीके का था। तो इस तरीके के सिस्टम में जो मटेरियल यहाँ होगा वही मटेरियल यहाँ भी होगा, पर अब वोल्केनो बन गए तो मटेरियल यहाँ और यहाँ पहुँच गया। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि किस तरह से जो प्लेट्स के इधर उधर मूव करने की वजह से वोल्केनो बीच में आ गए, उनके बीच में आने की वजह से जो मटेरियल था वो इधर और उधर। दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक ओशन के बारे में। ओशन के बारे में कल हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। एपिसोड के प्लेन एरिया क्या होता है, ट्रेंचेस क्या होते हैं, रिजेस, माउंटेन रेंजेस क्या होती है, पानी के अंदर अगर प्लेट्यू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। तो दिस वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, do subscribe the channel and leave your comments, compliments and suggestions. Thank you and have a nice day.